السلام علیکم. اب شروع کریں پلیز. سائلنس پلیز. ہاں جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کچھ ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہوا جس کی وجہ سے دونوں طرف سے شیلنگ ہوئی اور اس میں ہمارے کئی علاقے جو ہیں اس کی زد میں آئے، جس میں سب سے زیادہ متاثر پونچھ، اوڑی، ٹنگڈار اور کچھ حصے کپوارہ کے بھی اس زد میں آئے، اور مجھے موقع ملا ان تمام علاقوں میں جانے کا، اور میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا کہ جب اس قسم کے آپس میں تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ جنگ کی نوبت آتی ہے تو عام لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، جو ہمارے بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، کس طرح گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، زندگی بھر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بیچارے لوگ جمع کر کے مکان بناتے ہیں، مکان تباہ، اور اس کے بعد فیملی اجڑ گئی ہیں، بچے. اور میں تو ایک جگہ گئی تو انہوں نے وہ بچوں کی جو قبر ہے اپنے گھر کے اس میں آنگن میں رکھی ہے، 2 بچے ایک ساتھ ان کے چلے گئے اس دنیا سے. تو میں آج اس لیے مجبور ہو گئی آپ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ میں جہاں بھی گئی ابھی تک، مطلب شیلٹر تو بہت دور ہے، ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، ان کو ٹینٹ بھی نہیں ملا ہے ابھی تک. تو جو میں کل ٹنگڈار گئی تو وہاں بھی میں نے دیکھا بیچاری وہ ایک عورت ہے، اس کا ہسبینڈ یہاں مزدوری کرتا ہے سری نگر میں، 2 بچے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی، اس کا گھر بالکل تباہ ہو گیا تو وہ بھی بیچاری، اس کو پتہ نہیں میں کہاں کدھر اپنا سر چھپاؤں. تو اس لیے مطلب حالات کافی خراب ہیں ان لوگوں کے، ان کی جان بھی گیا، مال بھی گیا، اور کئی جگہ ایسا ہے کہ جہاں شیل لگا ہوا ہے تو ڈھانچہ تو کھڑا ہے مگر مکان پورا بوسیدہ ہو گیا ہے، مکان کھوکھلا ہو گیا ہے. اور جو میں نے سنا جو سرکار کی طرف سے ٹیمز گئی ہیں وہ دیکھتے ہیں اسٹرکچر کھڑا ہے اور تمہارا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تو بس. ایسا نہیں ہوتا ہے، جب کسی مکان پہ شل لگ گیا ہو تو وہ مکان پورا ہل جاتا ہے، اس کی پوری بربادی ہو گئی ہے. تو اس لیے میری سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو وار امپیکٹڈ زونز ڈکلیئر کیا جائے تاکہ اس میں وار فوٹنگ پہ ان کا ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے. مکانوں کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے دیا جانا چاہیے. آج آپ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے میں دروازہ بھی نہیں بنتا ہے. تو یہ میری گزارش ہے. اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو میں ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں سرکار سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے، کہ ان سب جتنے بھی اس میں ہمارے لوگ جن کی جانیں گئی ان کو شہید قرار دیا جانا چاہیے. ایک تو ان کی عزت افزائی ہو جائے گی کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، بچے تھے ہمارے، عورتیں تھیں ہماری، آدمی لوگ اس میں گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک تو ان کی عزت افزائی ہوگی اور دوسرا کچھ بینیفٹس بھی ان کو ملیں گے، ان کی فیملیز کو ملیں گے. اور جن کے لوگ چلے گئے ہیں ان کو نوکری بھی ملنی چاہیے، ایک جاب بھی ملنا چاہیے. اور کئی مجھے دکاندار ملے، انہوں نے کہا کہ ہماری دکانیں اس میں ڈیمیج ہو گئی، تو انہوں نے جو بینک میں انشورنس ہے تو بینک انشورنس دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ہمارا انشورنس نہیں دے سکتے آپ کو. تو اس میں چاہوں گی گورنمنٹ انٹروین کرے. اور جو لون لیے ہیں، کئی لوگوں نے لون لے کے مکان بنائے ہیں، دکانیں بنائی، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا تھا، یہ ضروری ہے کہ اس لون کو ویو آف کیا جانا چاہیے. اور کئی میں گئی تھی وہاں مینڈر تو وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس پہ اٹیک ہوا تھا ایک طرف سے، تو اس کے نزدیک جو دکانیں ہیں، مکان ہیں، ان کا کافی نقصان ہوا ہے. اور اس کے لیے کوئی وہاں گیا نہیں ہے، ان جگہوں پہ وہاں گیا نہیں ہے ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے. تو میں سرکار سے گزارش کروں گی کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے. اور پنچ کی میں خاص طور سے بات کروں گی کہ پنچ میں اگر ہمارے پاس ہسپتال میں ٹراما سینٹر ہوتا، ہماری جو وہاں ایمبولینس ہے اس میں وینٹیلیٹر ہوتا تو شاید کئی جانیں پنچ میں بچ سکتی تھی جو جانیں وہاں
उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। और यही मेरा है कि आखिर में मुझे बहुत, अभी भी मुझे बहुत तकलीफ होती है ये कहते हुए कि मैं जहाँ भी गई लोगों ने कहा हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। तो मुझे ये डिमांड करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि आज 21वीं सदी में हमारे लोग जहाँ अच्छे स्कूलों की डिमांड करते, नौकरियों की डिमांड करते, अस्पतालों की डिमांड करते, वो कहते हमें बंकर चाहिए, क्योंकि उनके दिल में ये खौफ घर कर गया है। उनको लगता है जंग कभी भी हो सकती है। तो हम हर वक्त जंग की हालत में अपने लोगों को रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये मरकजी सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लोग हमेशा इस जहन में रहे कि कब गोला आए और कब हमें बंकर में जाने का मौका मिले। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से भी और मरकजी सरकार से भी, इमीडिएटली मदद कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई नहीं है, उनको मकान बना के भी देने पड़े, आपको मकान बना के दीजिए। और इस वक्त जहाँ जहाँ भी इस वक्त ये हुआ है, वहाँ गवर्नमेंट की टीमें जाके देखनी चाहिए, जिनके सर पे छत नहीं है तो कुछ तो करो उनके लिए। तो मेरी ये, इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया था कि अभी तक मैं जहाँ जहाँ भी गई तो अभी तक मदद कोई पहुंची नहीं है किसी के पास। मैम, यू रिसेंटली विजिटेड ऑल दोज प्लेसेस जो इफेक्टेड हैं, काफी नुकसान भी आपने देखा, तो व्हाट डू यू वांट टू टेल दोज पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर वॉर ओवर द टाइम? आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगदार के बॉर्डर में रहो, अरसपोरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहाँ अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने ऑलरेडी, हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। मैम, आपकी नजर में फिर क्या समाधान है? जो पाकिस्तान बार बार जो हरकत करता है, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है? यार जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं, जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन, जंग कोई ऑप्शन नहीं। मैम, डेलीगेट, आई थिंक दे शुड टेक ए पेज फ्रॉम वाजपेयी जी डॉक्ट्रिन, तो उससे उनको सारे सवालों की जवाब मिलेगा। मैम, पीपल कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर स्टैंड, जो पीडीपी का स्टैंड रहा है जब आप पीस की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अभी जो रीसेंट एस्केलेशन हुई, हाउ डू यू व्यू योर स्टैंड एज ओनली पॉलिटिशियन और अमंग दोज जिन्होंने पीस की बात की इस टाइम पीरियड में भी, जिन्होंने सीज फायर की बात की अक्रॉस इंडिया अगर बात करें? देखिए पीडीपी बनी ही, अदरवाइज हम कांग्रेस में थे तो हमें क्या मजबूरी थी पार्टी बनाने की। पीडीपी बनी इसके लिए जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए, एंड फॉर मुफ्ती साहब डॉक्ट्रिन देयर इज नो अदर वे to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim, usually India claims a bilateral issue। इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी कह रहे थे इंसानियत के दायरे में मैं करूंगा, तो मुझे लगता है उसी पॉलिसी को आगे चलाने की जरूरत है। मैम, आपने विजिट भी किए, क्या असेसमेंट है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ या कोई इससे क्या? वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए, हमारे घरों के अंदर आंगन में माँ बाप ने कब्रें बनाई अपने बच्चों की। किसी की माँ, किसी छोटे दूध पीते बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सरदार जी हमारे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ इसमें, उसके गोला आ गया और उसके वहीं उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। तो ये तो हम, मुझे तो वही नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इससे ज्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था। तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो
आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम, कि मेरे लिए तो 0/0। मैडम, आपने एक्टिव एचएम कमिश्नर जयशंकर जी का नाम लिया, अभी पहली पाकिस्तान को इंक्वायर किया था रिगार्डिंग अटैक ऑन, फिर वहाँ से राहुल गांधी ने उनको बयान को निशाना बनाया, बताया हमने ये बताया कि कुछ डेथ हमारे नुकसान हो गए। वहाँ से बीजेपी का कहना है ये राहुल जी और प्रो पाकिस्तान लैंग्वेज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के वक्त में जब भी आप कोई सवाल करते हो तो उसको बहुत जल्दी एंटी नेशनल का जामा पहनाया जाता है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द नेशन, बीजेपी इज नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over in this quarter. How do you view the developments around? अरे बात करो, मैंने एक बात आपको बुलाया था इसलिए कि ये जो हो गया है इतना बड़ा, उसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए जो डेलीगेट्स जा रहे हैं देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि पीडीपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहते हैं। तो उसमें जब भी आप कोई इश्यूज उठाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वो पीडीपी उसको टूथ एंड नेल फाइट करेगी। Thank you. जो प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है, इसमें ये अब तासुरात दिए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो कर्नल के मुताबिक किया था, कर्नल सोफिया कुरैशी के मुताबिक, उसको बिल्कुल यानी कि उसको पूरी तरह से यहाँ पर न्यूनतम दी जा रही है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक तरफ से हम एक प्रोफेसर जो है अली खान, जो बहुत ही वेल नोन है, हाईली एजुकेटेड है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है, तो उसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। वो एक बोलता है कि आपने जो कर्नल कुरैशी के लिए आपने उसके लिए किसी ने बद कलामी की और आपने उस पर स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है। मगर जो मुसलमान लिंच होते हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, तो ये हिपोक्रेसी क्यों? उस वक्त आपका स्टैंड कहाँ गया होता है? तो उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। मगर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन लेके बाहर जा रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए, उनको बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, दूसरी तरफ से आप एक प्रोफेसर को अरेस्ट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको नजर में रखते हुए उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। मैम, जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है जम्मू कश्मीर की वकालत करने ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए, डू यू थिंक उसमें फारूक साहब या जो हमारी यहाँ की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब या पीडीपी से आपको भी उस डेलीगेशन का हिस्सा होना? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस नहीं देना चाहती। जो उन्होंने फैसला किया वो सोच समझ लिया।